Preparation of alkane. In the previous lecture we have just finished about the IUPAC nomenclature. Hope all of you have completed till 13.5 problems, right? Till 13.5 you can see that there are some IUPAC nomenclature related questions. So if you have not solved, then all of you have to solve all the nomenclature in your notebook. I'll check that. Second thing, in the preparation of alkane, I had informed you about from alkenes and alkynes, that is from unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons means alkenes and alkynes. The process is called hydrogenation method. Hydrogenation method means additions of hydrogen in alkenes and alkynes. Can anybody tell me that yesterday I had informed you about conversion also? How you will convert alkene to alkane. Anybody have remembered? Yes. Platinum, palladium or nickel. So just suppose here propene structure is there. CH3, CH and CH2. Propene, right? You can see here CH3, CH, CH2. So here we will put one bond. This is known as propene, right? So if we want to convert this propene into propane, in the previous lecture I informed you, we'll put here plus H2 in the presence of platinum, palladium or nickel. So what we will get is both the hydrogen atom will attach here and we'll get a compound called propane, that is saturated hydrocarbons. So here this compound you are getting it from unsaturated hydrocarbons to saturated hydrocarbons. So first you have to write in your notebook, that is hydrogenation method. In hydrogenation method, if you are converting unsaturated hydrocarbons to saturated hydrocarbons, you have to just add hydrogen in the presence of platinum, palladium or nickel. Platinum and palladium. Hydrogenation method. Yeah, if you can write in your notebook also. I am writing here the define of hydrogenation method. You can write the topic also, hydrogenation method topic, conversion of alkene to alkane. Conversion unsaturated hydrocarbons to saturated hydrocarbons. Alkenes or alkynes can be converted into alkanes Got it? Just write this formula in your notebook. And you can put examples, as right now only I said you about the propene. Propene to propane. Second example, you can write propine. This is especially for conversion of unsaturated hydrocarbons to saturated hydrocarbons. Right? All of you have written in your notebook. See, these things you should remind in your mind also. This is only for revision, that whenever you are forgetting anything,
No need to take a snapshot, Miss Ameya. You can write beta in notebook. You are too advanced technology users. But writing makes a man perfect. Yes, Nikunj? Have you written? Please. Ameya, you are not writing? बेटा देखो ये सिंपल चीजें तुम्हारे दिमाग में याद रहना चाहिए. मुझे पता है तुमको याद हो गया है. नोटबुक में नहीं लिखना चाहिए ना. और नादा इतना एक्सपर्ट है फिर भी वो लिख रही है. नादा सिर्फ टेक्स्ट बुक में वो भी अंडरलाइन करने वाली स्टूडेंट है. ओनली शी अंडरलाइन. शी डोंट राइट आल्सो इन नोटबुक एंड देन आल्सो शी इज राइटिंग बिकॉज समथिंग इज इंपॉर्टेंट. सो यू शुड आल्सो राइट. राइट. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्काइंस. देखो ये तीनों मेथड है, याद रखना बच्चों. सबसे पहला हाइड्रोजिनेशन मेथड है. सेकेंड जो है फ्रॉम अल्काइंस. अल्काइंस में दो तरह के मेथड है. डायरेक्टली तुम्हारा अल्काइल हैलाइड्स वाला और दूसरा उल्ज रिएक्शन. और तीसरा हमारा कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस जो तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब हम लोग कुछ लिखते हैं बोर्ड पर तो उसको डेफिनेटली आप लोग अपने नोटबुक में लिखा. चलिए सेकंड हो गया सब लोगों का. सब लोगों ने लिख लिया. यस प्रीतिदास, हैव यू रिटन? ऑल ऑफ यू हैव रिटन. नाउ second method is from alkyl halides. This was hydrogenation method. Second is Urz reaction method. But before moving towards the Urz reaction method, I will go through from alkyl halides. There are two types of alkyl halides. This first method was hydrogenation method, from hydrogenation method, and second is from alkyl halides. Alkyl halides can be converted into alkanes. Alkyl halides can be converted into alkanes with the presence of zinc and hydrogen plus ion. याद रखना, जब भी कोई अल्काइल हैलाइड, जनरल अल्काइल हैलाइड जैसे मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3Cl. यही होता है क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन को आपको क्या करना है? मीथेन बनाना है. राइट. तो क्लोरोमीथेन को मीथेन बनाने के लिए जिंक या तो आप कॉमा डाल के H+ डाल सकते हैं, अदरवाइज जिंक ऑब्लिक H+ डाल सकते हैं. ये दोनों चलेंगे. राइट. तो यहाँ पर जिंक ऑब्लिक H+ का मतलब आप समझ गए होंगे. यहाँ पर जिंक क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और जो है आपका हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा क्योंकि ये H+ में है. H+ इज अ वेरी एक्टिव ग्रुप. सो हियर इट विल बी अटैच्ड एंड यू विल गेट अ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. तो आपने देखा कि अगर कोई भी छोटा अल्काइल हैलाइड्स है, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, कोई भी छोटे छोटे जो कंपाउंड्स हैं, उनको अगर आपको कन्वर्ट करना है अल्केन्स में. So from alkyl halides, how will you convert? Alkyl halides can be converted into alkanes with the presence of zinc and hydrogen plus ion. कोई भी मिथाइल क्लोराइड ले लीजिए, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, कोई भी कंपाउंड. तो आप लोग यहाँ पर एक डिफाइन लिख लीजिए. अल्काइल हैलाइड से कैसे लिखना है? अल्काइल हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स विद द प्रेजेंस ऑफ जिंक. यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन बनाने के लिए, ये सिर्फ छोटे कंपाउंड्स के लिए. याद रखना, छोटा कंपाउंड्स इन द सेंस ऑफ इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल. अब जो बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं उसके लिए इसी का दूसरा जो स्टेप है जिसको उर्ज साहब ने दिया था, जिस रिएक्शन को उर्ज रिएक्शन कहा. क्या कहा जाता है? उर्ज रिएक्शन. उर्ज रिएक्शन में क्या होता है? कोई एक सिंगल अल्काइल हैलाइड्स कंपाउंड है, उसमें आपको बड़े नंबर्स में अल्कीन जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है वो बड़े नंबर्स में चाहिए. जस्ट सपोज यहाँ पर आपका CH3 CH2Cl, ठीक है, इथाइल क्लोराइड है. इथाइल क्लोराइड को आपको ब्यूटेन बनाना है. क्या करना है? ब्यूटेन बनाना है. तो इसके लिए आपका बस याद रखना, उर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी अल्काइल हैलाइड में आपको सोडियम प्लस ऐड करना है और इसका डबल करने के लिए सेम कंपाउंड आप यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए, CH3 CH2Cl बराबर. अब क्या हो सकता है आप लोगों को पता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर के प्रेजेंस में
ईथर आप लोगों को पता है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द सिंबल ऑफ ईथर? ईथर का सिंबल क्या होता है? याद कीजिए, फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा था अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद वाला ये सब फंक्शनल ग्रुप था। ROR, RCOOR ऐसा कुछ पढ़ा था आप लोगों ने? याद कीजिए, 10th स्टैंडर्ड में भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिली होगी। ROR या ROR डैश, इथाइल, मिथाइल, ईथर, नाम सुने हो आप लोग कि नहीं सुने हो? याद कीजिए, CH3O CH3, क्या नाम होगा इसका यूपीएससी ने? कैन एनीवन? मिथॉक्सीमिथेन, नाम सुने हो? ऑक्सी, कार्बोक्सी, अल्कोक्सी, अल्केन, नाम सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुने। ये सारी चीजें तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, तुम सबने पढ़ा है, याद नहीं आ रहा होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन था, याद आ रहा है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, उसमें क्या था? व्हाट वाज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन? याद आया? शोक का जो फॉर्मेशन होता था, तो इथानोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्शन करते थे, याद आया? इथानोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्शन करते थे, C2H5 इधर, OC2H5 उधर, COO C2H5 उधर, याद आया? तो यहाँ पर ये ईथर है। ईथर का आप लोगों को बस खाली इतना याद रखना है। कोई पूछे कि तो याद ऐसा आना चाहिए कि भाई ईथर का सिंबल क्या है। ईस्टर और ईथर याद कीजिए, RCOOR एंड ROR। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये सारे कुछ जो आए हैं ना, कहाँ से आया है, बस उसका ओरिजिन ढूंढ लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है ना, इसमें यहाँ पर R डाल दीजिए और इस हाइड्रोजन को रिमूव करके R डाल दीजिए। ईस्टर का नाम सुने? RCOOR एंड ROR, ये ईथर और ईस्टर के सिंबल्स हैं, दिमाग में रखना। ओके, यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो है उस रिएक्शन में अगर बड़े कोई भी बड़ा अल्काइल हैलाइड से आपको अल्केन बनाना, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है आपको कि इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड को मैंने +2 Na जो किया है, ये उर्ज रिएक्शन का स्टेप है जिसमें +2 Na, इसमें ये 2 Na लिखने के पीछे एक रीजन है कि एक क्लोराइड ये वाला और दूसरा क्लोराइड ये वाला, तो -2 NaCl बाहर हो जाएगा आपका, और ये CH3CH2 CH3CH2, मतलब इस तरह से CH3CH2 CH2 CH3 क्या बन गया? ये नॉर्मल ब्यूटेन। तो बड़े अल्केन्स बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड से हम लोग उर्ज रिएक्शन का यूज करते हैं। उर्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था कि कोई भी अल्काइल हैलाइड्स में अगर आप सोडियम को ऐड करते हैं तो ये लिखने के पीछे क्या था, बस आगे में 2 डाल देना, वो लिखना नहीं पड़ेगा। वो जो बाजू में लिखा है ना मैंने, वो लिखना नहीं पड़ेगा अगर तुम आगे में 2 डाल, और +2 Na कर देना। ये क्लोराइड के बदले ब्रोमीन भी रह सकता है। तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखना इथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ, इज इट रिटन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में? देखो तो दिया हुआ है ना इथाइल ब्रोमाइड। तो कोई भी हैलोजिनेशंस के कोई भी कंपाउंड आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव, उसको हम लोग कम लेते हैं, जनरली ब्रोमीन और क्लोरीन को। तो यहाँ पर ये जो आप स्टेप देख रहे हो, इस स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हैं, उर्ज रिएक्शन इज इक्वल टू 2 into अल्काइल हैलाइड्स, 2 into अल्काइल हैलाइड्स प्लस 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स अल्केन्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया कि अगर अल्काइल हैलाइड्स है उसके आगे में 2 डाल देना है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ ना, ड्राई ईथर। याद कीजिए, हम लोगों ने स्टेप्स जो पढ़े थे, याद आ रहा है? क्रिस्टलाइजेशन मेथड मैंने वीडियो दिखाया था। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में कैसे क्रिस्टल्स को ड्राई किया जाता है वॉश करने के बाद, सब भूल गए हमने?
नहीं, इसका मतलब ये लिखा है ना आपका, ये एक बार और ये एक बार, मतलब 2 बार हो गया बेटा। ये 1 टाइम, इधर देखो, इधर ये 1 टाइम, देखो इधर इधर सेम थिंग उधर भी दिया होगा। इधर जो है इथाइल ब्रोमाइड और उसके बाद सोडियम के बाद ब्रोमो इथेन। समझ में आया बेटा? यस, अब समझ में आ गया ना। वो ब्रोमो इथेन सोडियम के बाद दिया है ना, तो वही हो गया बेटा। इसीलिए यहाँ पर 2 टाइम्स जो अल्काइल हैलाइड्स को एक लंबा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग बनाए। तो अल्केन्स में आप लोग ये डाल दीजिए 2 into अल्काइल हैलाइड्स प्लस 2 Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स अल्केन्स। ये फार्मूला याद हो गया? यस बेटा, यू हैव टू राइट देन ओनली। ये 4 कार्बन आया कहाँ से बेटा? कोई पूछेगा फ्रॉम वेयर हैव यू गॉट, कुछ तो रहना चाहिए ना रीजन बेटा बताने के लिए। ये 2 लिखने के पीछे यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, BrCH2CH3 दिया है कि नहीं दिया है? वही 2 आगे में मैंने लिखा कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा सेचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो आपको ये गॉट इट। इस तरीके से अगर मैं आपको कहूँ प्रोपाइल क्लोराइड को हेक्सेन बनाने के लिए, तो क्या आप लोग बना सकते हैं? हमें यहाँ नहीं बना सकते, हेतवी भी नहीं बना सकती। हमें अपना पार्टनर तुरंत ढूंढ ली कि मेरे जैसा मुंडी हिलाने वाला कौन। अरे बेटा, प्रोपाइल क्लोराइड, व्हाट प्रोपाइल क्लोराइड मींस CH3 CH2 CH2 Cl, दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड, राइट? आगे में 2 डाल दीजिए, हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ 2 Na ड्राई ईथर, और यहाँ पर आप डाल दीजिए सीधा सीधी हेक्सेन CH3 CH2 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 एंड CH3। ये आपका बन गया हेक्सेन, राइट? हमें गॉट इट बेटा? जब पढ़ाता हूँ बोर्ड पे तो तुम्हारा ध्यान कहीं और। यहाँ पे अभी जस्ट मैंने प्रोपाइल क्लोराइड से हेक्सेन बनाया, पता चला क्या किया मैंने? कहाँ से पता चलेगा? जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारे नोटबुक। देखो यहाँ पर जो भी अल्काइल हैलाइड्स होगा, जो भी अल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड्स होगा प्लस 2 Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और उसके बाद आप सेचुरेटेड अल्केन्स बनाते हैं। अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन बनाने के लिए 2 स्टेप है। छोटा अल्काइल हैलाइड्स है तो उसके लिए जिंक और हाइड्रोजन प्लस लेंगे, और अगर बड़ा अल्काइल हैलाइड्स है तो उसके लिए हम लोग उल्ज रिएक्शन का यूज करेंगे। उल्ज रिएक्शन समझ में आ गया आप लोग को? यस और नो? हेतवी को नहीं आ रहा है? यस हेतवी आ गया। उल्ज रिएक्शन किसको कहते बता सकती हो? आ गया लेकिन नहीं बता सकते ना बेटा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। नहीं समझ में आया? पूछो निकुंज बेटा, पूछो क्या नहीं समझ? ये 2 बार क्यों हुआ ये पूछ रहे हो? एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक ओपन करो, देखो उर्ज रिएक्शन वाला स्टेप देखो, उसमें तुम्हारा दिया है CH3 CH2 Br, आगे में दिया है, दिया रिएक्शन में CH3 CH2 Br। यस और नो? निकुंज हैव यू सीन उर्ज रिएक्शन? पहले देखो आगे में क्या दिया है, CH3 Br दिया है, मिथाइल ब्रोमाइड दिया है, कोई बात नहीं, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस 2 Na प्लस ब्रोमोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स अल्केन, मतलब इथेन दिया है। तो क्या किया उसने? वही ब्रोमोमीथेन और मिथाइल ब्रोमाइड 2 टाइम लिखा है, मिथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमोमीथेन सेम हुआ या नहीं हुआ? तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखिए, 2 into अल्काइल हैलाइड्स, 2 मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोमीथेन दोनों को मिला दो, 2 into अल्काइल हैलाइड्स हो गया, प्लस 2 Na कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दे दिया, और ये अल्केन्स बन गया, मतलब इथेन बन गया। समझ में आया? अनारा को भी फर्स्ट स्टेप में नहीं आया था तो रिया ने समझा। यस, ये क्यों दिया है सर? एक ही बार लिखा, उसमें तो 2 बार लिखा था। टीचर समझाते थे। हाँ, ग्रेट। और निष्ठा जी आपको समझ में आया? आपका क्या नाम? सर वो टेक्स्ट बुक में जो अल्काइल हैलाइड्स है वो एल्केन्स है ना, तो उसमें डाईहाइड्रोजन ऐड करते हैं तो बाद में HCl फॉर्म ऐसा करते हैं।
इसमें हाँ इससे पहले वाला जो था वो तो HCl फॉर्म ही होगा ना बेटा, ZnCl2 और वो HCO3 हो तो वहां पर 2 हाइड्रोजन होगा, तो 2 हाइड्रोजन जो होगा मिथाइल क्लोराइड का एक H बाहर निकल जाएगा और HCl नीचे में माइनस डालना है और तुम्हारा वहां पर अल्केन्स बन जाएगा। समझ में आया? अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के लिए एक तुम्हारा HCl बन जाएगा और दूसरा मेन कंपाउंड जो है वो तुम्हारा ऑर्गेनिक में क्या होता है देखना, A रिएक्शन B और जो तुम्हारा जो बाई प्रोडक्ट है वो नीचे में लिखना होता है, एरो के नीचे में, जैसे हम लोग एरो के नीचे में लिखते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये कह रही है कि सर यहाँ पर HCl डाल दीजिए, कोई भी HCl ही नहीं HX हो सकता है। ऐसे नहीं है, यानी एल्काइल हैलाइड्स प्लस H2 और उसके बाद यहाँ पे ये कह रही हो ना, H2 gives alkane plus HCl। ये यही ना, देखो यहाँ पर कोई भी अल्काइल हैलाइड्स को अगर अल्केन्स बनाना है, छोटा वाला अल्काइल हैलाइड्स को अगर अल्केन बनाना है तो डेफिनेटली हम लोग हाइड्रोजिनेशन जिस तरह से कर रहे हैं H2 खाली फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, याद करो फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, H2 के प्रेजेंस में था प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल, वहां पर यहाँ पर क्या है जिंक और H प्लस, कोई सेम है हाइड्रोजनेशन ही है लेकिन यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, वहां पे अल्कीन्स था, तो जो हैलाइड है हमारा वो हाइड्रोजन हैलाइड बन के बाहर निकल जाएगा और मेन कंपाउंड हम लोग को अल्कीन्स हो जाएगा। दूसरा उर्ज रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड्स है, सोडियम के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, प्रेजेंस खाली याद रखना तुम लोग किस चीज के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर, ये सारा कन्वर्जन में काम आएगा स्टैंडर्ड 12 में। अभी कुछ नहीं तुम लोगों को लगेगा, लेकिन जब जेई और नीट का एग्जाम दोगे, बोर्ड का एग्जाम दोगे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जब कन्वर्जन करोगे तब पता चलेगा सर क्या पता है। इसीलिए थोड़ा अभी नोटबुक में लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, हेडिंग दीजिए कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो आपका जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कितने को पता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? breakdown of a substance. Like example, water undergoes electrolysis, then it will form H2 plus oxygen. कोई भी कंपाउंड को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो वो कंपाउंड कैटायन और एनायन में ब्रेक होता है। जो भी आपका इलेक्ट्रोड्स है, जैसे एनोड होगा तो उस पे कैटायन जाएगा, जो कैथोड होगा उस पे एनायन जाएगा। यही इलेक्ट्रोलाइसिस का मेन प्रोसेस होता है। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसको एक वेसल के अंदर एपरेटस के अंदर में ले करके 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिया, इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हुआ, जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा, तो जो एनोड होगा उसके ऊपर में कैटायन जाएगा और जो कैथोड होगा उसके ऊपर में एनायन। यही प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, राइट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब ये प्रोसेस जो है तुम्हारा, सबसे पहले तुम लोग मुझे बताओ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH, यही है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। अगर एसिटिक एसिड को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? कोई भी बच्चा बताओ। सोडियम क्लोराइड, नमक जानते हो ना बेटा, सॉल्ट, उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो यहाँ पर जो CH3COONA है, इसका नाम है सोडियम इथानोएट। सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं कॉमन नेम। देखो कितना अच्छा, हमें यहाँ तुरंत पकड़ लिया। एसिटिक एसिड का एसीटेट आयन होता है, सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम एसीटेट कहेंगे। अगर इस सोडियम एसीटेट क्या हुआ, एक सॉल्ट हुआ ना, वीक सॉल्ट इसको आप कह सकते हैं, ये एक बेसिक सॉल्ट है, राइट।
बेसिक सॉल्ट को अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। सॉल्यूशन का मतलब वाटर के अंदर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तो क्या बनेगा? किसी के दिमाग में कुछ है? सोडियम इथानोएट को अगर जनरली आप वाटर में देते हो, सोडियम इथानोएट को, तो कैसे टूटेगा? कैटायन और एनायन में। ये आपका हो जाएगा सोडियम प्लस और CH3COO माइनस टूटेगा। टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो इस आयन को कौन सा आयन कहेंगे? हमें यहाँ CH3COO माइनस को कौन सा आयन कहेंगे? अभी जस्ट बोला था तुमने, सोडियम एसीटेट बोल दिया। ये एसीटेट आयन नहीं बोल सकती हो बेटा। ये एसीटेट आयन जो आपका, आप कह सकते हैं, जो इथानोइक एसिड से इथानोएट आयन हो गया, और सोडियम प्लस आपका, तो सोडियम प्लस चला जाएगा कहां पर? एनोड पे। और एसीटेट आयन कहां जाएगा? कैथोड पे। तो अब अगर आप इसको वाटर के साथ इस चीज को इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो कौन, तो ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है। सोडियम प्लस कैथोड और एनोड में क्या फर्क होता है? पहले कैथोड के पास जो है, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड और एनोड होते हैं। यस, तो जब कैथोड का मतलब हो गया, यहाँ पर जो आएगा वो निगेटिव आयंस आएगा, पॉजिटिव आयंस नहीं आएगा। कैथोड पे एनायन जाएगा और एनोड पे कैटायन जाएगा। अगर तुम लोगों ने बचपन में सीखा होगा तो पता हो। तुम बचपन में लोग बोलते हैं कैथोड मतलब कैटायन, लोग यही सोचते हैं कैथोड है कैटायन है, एनोड है एनायन, यही सीखा है। कैथोड मतलब पॉजिटिव, नहीं कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव। क्या होता है तुमको पता? कैथोड पे अगर कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे पॉजिटिव तो इसीलिए, अरे कैथोड नेगेटिव तो इसीलिए तो नेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज का एक्सेप्ट करते हैं। और बच्चों का कंफ्यूजन है सर, ऐसा क्यों होता है? देखो देखो अब समझा रहा हूँ। ये जो तुम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था, कैथोड रेज का नाम सुना था? कैनाल रेज, कैथोड रेज। व्हाट इज कैथोड रेज? कैन एनीबॉडी टेल? कैथोड रेज किसको कहते हैं? याद है कुछ की नहीं है? कैथोड रेज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हुआ था या इलेक्ट्रॉन में हुआ था? सब ब्लैंक। क्या पढ़ते हो तुम लोग? मुझे तो इसलिए बोला चैप्टर 2 का टेस्ट। तो चैप्टर 2 का टेस्ट रखने से तुम्हारे पास नॉलेज आ जाएगा, ऐसा लग रहा है? अभी तो 12 का हो, 11 का होंगे तो पता चलेगा नॉलेज आ रहा है। देखो यहाँ पर निकुंज जी, आपका जो डाउट है मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो रॉड होता है ना आयरन का, उसी तरह से इलेक्ट्रोड्स होता है। जो भी आप सॉल्यूशन डालोगे यहाँ, जो आपने कहा था कि सर कैथोड पे जो है आप कह रहे हो एनायन जाएगा, मैंने यही कहा है ना, और आप कह रहे हो सर कैथोड पे कैटायन जाएगा, आप यही कह रहे हैं ना। कैथोड का मतलब यहाँ पर जो कैथोड है, ये रॉड जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये रॉड के ऊपर में एनायन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। एनायन का मतलब क्या होता है? जो कॉपर सल्फेट टूटेगा Cu2+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा, राइट? तो ये SO4 2- का जो लेयर है वो कैथोड पे जाएगा और Cu2+ का जो लेयर है वो आपका एनोड। समझ में आया? एनोड पे कैटायन जाएगा, एनोड पे कैटायन जाएगा और कैथोड पे एनायन जाएगा। कैथोड पे कैटायन नहीं जाएगा, इतना याद रखिएगा। कैथोड पे एनायन निगेटिव चार्ज वाला आयन का लेयर और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन का लेयर। जब गोल्ड का जो प्लेट होता है ना, गोल्ड का जो लेयर हम लोग चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे ऑरम प्लस का लेयर आता है और सल्फेट का या जो भी सॉल्ट है निगेटिव आयन। समझ में आया? सर कैथोड पॉजिटिव है या नेगेटिव?
गुड क्वेश्चन। अब तुम लोग सीधा सीधी पूछ रहे हो कैथोड पॉजिटिव है या नहीं? कैथोड नेगेटिव है, नेगेटिव। ये एक इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिव आयंस को, कैथोड का नाम सुनते ही तुम लोग समझ, कैथ का मतलब समझ जाते हो पॉजिटिव, यही सब बोलते हो ना, इसी की वजह से बोल रहे हो। Same charge repel each other and dissimilar charge attracts each other. This is the rule of electrons. Yeah. कैथोड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, नेगेटिव है। Move towards, आगे बोल। Cation move towards anode है। क्या लिखा है? फिर से पढ़, पूरा पढ़। Cations are negatively charged कभी हो सकता है? कैथोड इज निगेटिवली चार्ज। देखो सुनो, अभी बस मैंने बताया कैथोड इज निगेटिवली चार्ज। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना बेटा, कुछ नहीं, आयरन का रॉड जैसा इलेक्ट्रोड्स होता है। जो इलेक्ट्रोड्स दो होते हैं, एक पॉजिटिव वाले होते हैं, एक निगेटिव वाले। तो निगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड कहा जाता है, जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड कहा जाता है। समझ में आया? अब समझ में आया? क्या अभी उसने बोला ना, तो आप सही बोले। बेटा क्या लिखा हुआ है जो तुमने जो स्टार्टिंग में बोला, देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा तुमने? कैथोड आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। कैटायन मूव टुवर्ड्स, यस। एक सेकंड सर, मतलब कैथोड नेगेटिवली चार्ज, Cathode is negatively charged electrode and anode is positively charged electrode. बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझ में आया? अब तुम लोग खुद बताओ, कैटायन किधर मूव और एनायन? तो क्या सेम चार्ज के ऊपर में मूव होंगे? तुम लोग क्या कह रहे हैं? क्या पॉजिटिव निगेटिव? तो मैंने क्या कहा? पॉजिटिव पॉजिटिव कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को। डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर। चलो उसको छोड़ो, पहले मेन आओ हमारा कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे आओ। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में आओ, चलो इधर आओ। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में जो सोडियम इथानोएट है, ये सोडियम इथानोएट को अगर तुम वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या सब बनेगा? सबसे पहले इधर देखो, सोडियम इथानोएट को अगर हम CH3COONA को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या सब बनेगा? सबसे पहले सोडियम वाटर का H+ और OH- में से OH- लेकर के ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? ये कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये आपका CH3 दो बार लेकर के सीधा सीधी इथेन बन जाएगा और आपका ये हाइड्रोजन गैस नहीं। तो क्या सब हुआ? सबसे पहले आपने देखा CH3 मतलब इथेन बना, जो मेन कंपाउंड है। हम लोग कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम इथानोएट से हमने पहले इथेन बनाया, उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, उसके बाद हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया। समझ में आया प्रोडक्ट रिएक्शंस कैसे हुए? ये जैसे आप इस दोनों को इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, पानी में डाल करके करंट पास करोगे, तो आप लोगों को जो मिलेगा, मेन हम लोग क्या बना रहे हैं? अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हमारा टॉपिक है। हम लोगों ने यहाँ पर सोडियम इथानोएट को वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हमें इथेन मिला।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। अब जो तुम्हारा टॉपिक था कि इलेक्ट्रोड्स पे क्या जाएगा, जो कैथोड और एनोड आयंस पे क्या क्या जाएंगी। अब है मेन, अब तुम लोगों को पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड। अब मुझे आप लोग बताइए, सारे समझ गए? पहले ये रिएक्शन समझ में आया, नोटबुक में लिखिए सब लोग रिएक्शन को। सोडियम इथानोएट को वाटर के साथ रिएक्शन कीजिए, ऊपर में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डालिए, इथेन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन लिखा, आदि आपने लिख दिया। यह सब है ओके। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट कर, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आपका डाउट। आप नहीं आए थे मॉर्निंग में, लेट से आइए आप? मैं आया था पूछने के लिए पी ब्लॉक में। क्या डाउट है? अभी मैं पी ब्लॉक पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ाया पी ब्लॉक पढ़ रही हूँ। दिस इज द माइंड डेविएशन मेथड। क्या दोनों का अलग-अलग है। पहला सबसे पहले HF जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, वो बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिएक्शन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड खुद से अपने आप से रिएक्शन करने में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है और उसका साइज बहुत ही छोटा है, इसलिए HF जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फ्लोराइड F2 आयन कर देता है। और दूसरा वाला जो हमारा है कार्बन और सिलिकॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो कार्बन और सिलिकॉन में क्या डिफरेंस है तुमको पता होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है और इसका 3s2 होता है। थर्ड में d ऑर्बिटल होता है, तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसका आयनाइजेशन 3d ऑर्बिटल होता है। थर्ड में सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें 3d वैकेंट हुआ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरिजन टू कार्बन एंड सिलिकॉन दोनों को कंपेयर करो कौन इजीली कनेक्ट करेगा। क्यों करेगा? उसमें 3D आ जाता है, 3D से आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एडवांटेज है, इसलिए वहाँ ज़्यादा हम सीधे जब वीडियो अपलोड करता हूँ इसीलिए कहा देखा। चलिए समझ में आया आप लोगों को? कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस कितने लोगों को समझ में आया? व्हाट इज कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड? प्रिया, व्हाट इज कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस? नाम याद रख लेना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में शायद ना ही दिया हो। दिया है कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड? क्या इस मेथड से मीथेन प्रिपेयर किया जा सकता है? वही तो मैं भी पूछा। नो, एक्सप्लेन व्हाई। सोडियम मिथानोएट कभी बनेगा? पहले ये दिमाग लगाओ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH को कहा जाता है, कहा जाता है COONA बनेगा। भाई हम लोग क्या बना रहे हैं? अल्केन्स बना रहे हैं। तो मीथेन से मीथेन थोड़ी बनाएंगे, मीथेन से इथेन बनाएंगे ना। बात समझ में आया? वहां पे पूछ रहा है क्या इस मेथड से मीथेन बनाया जा सकता है? नहीं। क्यों? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग अल्केन्स नॉट अल्केन। इफ यू आर टेकिंग अ रिएक्शन ऑफ अल्केन, सोडियम मिथानोएट भी अगर तुम ले रहे हो तो इथेन बनेगा, ना कि मीथेन बनेगा। समझ में आया? ये रिएक्शन जो है एसिटिक एसिड को मैंने जैसे तुम लोग को बताया था, सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन किया, HCl बाहर CH3COON, सोडियम इथानोएट। अगर इसके बदले हम इसको हटा दें COONA, क्या कंपाउंड बन सकता है या नहीं बन सकता है?
CH3COO Na बन सकता है या नहीं बन सकता है? सोडियम मिथानोएट बनेगा या नहीं बनेगा? याद करो, अभी जस्ट बताया था तुम लोगों को ईथर और ईस्टर में बताया था RCOOR बताया था कि नहीं बताया था? फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, यही अंतर है। यहाँ पर H डाल दोगे फिर भी तुमको यहाँ पे कुछ ना कुछ CH3 तो डालना पड़ेगा ना, तो इथानोइक एसिड हो गया, मिथानोइक नहीं होगा, जिस कारण से तुम्हारा मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आया? ये दोनों अल्काइल ग्रुप है, या तो CH3 डालो या CH3C2H5 डालो। RCOOR OAT होता है इसका सफिक्स, इथानोएट, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सोडियम इथानोएट या एसीटेट जो है वो कॉमन नेम है। समझ में आया? उधर देखो अनदर R-COOR, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा। अल्काइल में मिनिमम कम से कम तुम एक CH3 तो डालोगे, एक साइड हाइड्रोजन भी डालोगे, तो एक साइड तो एटलीस्ट CH3 डालोगे। CH3 डालोगे तो तुम्हारा बन जाएगा एसिटिक एसिड, जिसको इथानोइक एसिड कहा जाता है। तो इथानोइक एसिड से मीथेन कैसे बनेगा? इथेन बनेगा ना बेटा, इथानोइक एसिड से इथेन बन सकते हैं, मीथेन तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए at least there must be one alkyl group in the, कौन सा ग्रुप है? ईस्टर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, ये था। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस को आप करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन कौन से रॉड होते हैं? कैथोड और एनोड। तो आप लोग मुझे बताइए कौन कौन सा आयन कैथोड पे जाएगा और कौन कौन सा आयन एनोड पे? सबके सामने एनसीईआरटी खुला हुआ है? नहीं है? जिसके सामने नहीं है? हार्दिक पटेल। ये कहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा? बस इतना बता दीजिए आप लोग। देखिए टेक्स्ट बुक में देखिए, पहला दिया होगा एट एनोड, दिया है? एनोड पे कौन सा जाएगा? तो वो जो है कौन कौन से कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहे हैं उस चीज को देखिए, इसीलिए मैंने रिएक्शन लिखा है नीचे में। क्या कंपाउंड बनेगा? सबसे पहले ये बताओ। अल्केन्स बनेगा। तो अल्केन्स में जो तुम्हारा जो गैसियस रिलीज हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वो तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों तुम्हारा गैसियस हो गए, और मेन तुम्हारा हो गया अल्केन्स। दो कंपाउंड मेन हो गए, CH3 और Na हो गए, ये दोनों गैसियस स्टेट में। अब एसिडस गैसियस एंड बेसिक गैसियस, ये भी थोड़ा दिमाग में रखना है तुम लोगों को। क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में? एनोड पढ़ो। व्हाट इज दैट? अनादा, व्हाट इज रिटन? एनोड के ऊपर में क्या सब दिया है? पढ़ो। What is given at anode? Read Riya. एसिटेट आयन बाद में वो एसिटेट फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल जो यानी 2CH3 और CO2 एनोड पे जाएगा। CH3 मतलब इथेन जो है तुम्हारा एनोड पे गया, राइट? इथेन जो 2CH3 का मतलब इथेन हुआ ना, CH3 2CH3 का मतलब इथेन हुआ। इथेन कहाँ गया? और कैथोड पे क्या गया? H2 गैस गया। यस, बोलो क्या कंफ्यूजन हो गया तुम्हें? कुछ कंफ्यूजन नहीं है, रिएक्शन को पहले तुम समझो। रिएक्शन अगर समझ गई तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यहाँ पर सोडियम इथानोएट है, वाटर में मिलाया, कंपाउंड्स क्या सब बना पहले वो समझ जाओ। कंपाउंड्स में CH3 बना तुम्हारा, यहाँ पर आगे में 2 डाल दो, 2CH3CO डाला तुमने यहाँ पर, तो ये CH3 और CH3 दोनों तुम्हारा इधर आ गया। 2 कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा बाहर निकल गया, 2 साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा बाहर निकल गया। और ये हाइड्रोजन के आगे में क्या डालना पड़ेगा? वाटर के आगे में 2 डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा? रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर 2 डालो। अब देखो तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस है, यस और नो?
रिएक्शन को पहले बैलेंस कीजिए। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद अब जो है आपको यहाँ पे लिखना है कि एसीटेट आयन का जो फ्री रेडिकल्स है, एसीटेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO माइनस, यही होता है एसीटेट आयन। एसीटेट आयन कैसे टूटेगा? एसीटेट आयन किस तरह से ब्रेक करेगा? ये आपका CH3 मतलब इथेन के रूप में टूट गया ये दोनों, और ये जो है COO मतलब CO2 हो गया। बात समझ में आया? ये 2CO2 आपका निकल गया, और ये जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के रूप में यहाँ पर ऑब्जर्व होगा। जो एसिटिक एसिड जो ब्रेक होता है CH3COOH जो ब्रेक होता है तो CH3COO माइनस और H प्लस, वो जो लिखते हो तो ये H प्लस के पास दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा और तुम्हारा हाइड्रोजन। ये एसीटेट आयन जब ब्रेक होगा तो इस तरीके से, तो एसीटेट आयन तुम्हारा निगेटिवली चार्ज आयन है। कौन से इलेक्ट्रॉन पे जाएगा? तो उस एनोड पे कौन सा आयन जाएगा? जाएगा। क्यों जाएगा पता चला? क्यों? यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज है यहाँ पे? Yes, that is the main thing you have to understand. Here there is no charge on ethane. If I ask you why ethane is deposited on cathode or anode? Why? Because it has came from negative charge. That is the reason. यहाँ पर ये चीज को याद रखना है। कोई पूछेगा सर यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है इथेन के ऊपर में, कोई चार्ज है कैटायन और एनायन जो आपको पता चलेगा कौन से इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है? तो कहाँ से उसका ओरिजिन है उसको याद रखना है। समझ में आया? व्हाट इज कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस? हैनी पटेल, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया। सोडियम इथानोएट को जब वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो तुम्हारा इथेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, जिस प्रोसेस को कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको एसीटेट आयन को रिएक्शन करना है। एसीटेट आयन किस तरह से टूटता है वो सारे कंपाउंड्स दिखाना है और बताना है कि कौन कौन सा कैथोड पे जाएगा और कौन कौन सा एनोड पे जाएगा। इस रिएक्शन को कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कितने तरीके से आप अल्केन्स बना सकते हैं? हाइड्रोजिनेशन मेथड। दूसरा अल्काइल हैलाइड्स का साइंटिस्ट का नाम क्या था? पुर्ज रिएक्शन, ठीक है। और तीसरा कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तीनों मेथड से आप कार्बोक्सिलेशन भी इसको कह सकते हो। आप कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है कार्बोक्सिलेशन मेथड क्या है? क्या है पढ़िए। What is carboxylation method? देखो ये जो मेथड है तुम्हारा राइट, कार्बोक्सिलेशन मेथड में कार्बो या फिर आप उसको इस तरह से कह सकते हैं COOH में से जो आपका CO2 बाहर निकल रहा है वही है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन्स कैसे बनाना? कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH हुआ ना, एसिटिक एसिड। वही एसिटिक एसिड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? COOH आयन जुड़ा हुआ है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन्स जो बना रहे हैं इसी मेथड को कार्बोक्सिलेशन मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तीन मेथड आपको याद रखना है अल्कीन से अल्केन बनाने। समझ में आया आप लोगों को? कौन कौन सा मेथड? हार्ड की बिना देखे बोलो। अल्काइल हैलाइड्स वेरी गुड। अल्काइल हैलाइड्स में एक साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना। समझ में आ गया? अब आ जाइए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कार्बन का नेचर, फिजिकल नेचर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। किसी को याद है कौन कौन सा कार्बन कहाँ से कहाँ तक सॉलिड फॉर्म में होगा, कहाँ से कहाँ तक लिक्विड फॉर्म में और कहाँ से कहाँ तक गैसेस फॉर्म में?
फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले जब भी आप अल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो उसके सुगंध के बारे में जरूर लिखिए, कलर के बारे में जरूर लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में जरूर लिखिए, उसका जो नेचर है फिजिकल स्टेट्स उसके बारे में जरूर लिखिए, वो पोलर है नॉन पोलर है उसके बारे में लिखिए, वो कौन से सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है उसके बारे में। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में अल्केन्स आर कलरलेस, अल्केन्स आर कलरलेस, कलरलेस सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्केन्स आर कलरलेस, अल्केन्स आर ऑर्डरलेस, दूसरा प्रॉपर्टी सुगंधहीन, रंगहीन, टेस्टहीन, आप नहीं पूछ सकते, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ये तीन लेस होते हैं। तो जिसमें आपको ये दो लिखना है, दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। एक बात मुझे कोई बताओगे, अल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा या हाई? बस अपने लॉजिक से मुझे बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड के कारण क्या हो सकता है? आयनिक बॉन्ड्स को डिसोशिएट होने में समय लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है तो डेफिनेटली ये इजीली ब्रेक होगा, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? लो होंगे। लिख लीजिए, अल्केन्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर, क्योंकि चारों साइड क्या होते हैं? हाइड्रोजन्स होते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं? ये जनरली नॉन पोलर होते हैं। लिखने के बजाय अनादा एकदम अंडरलाइन करते जाए। आप जो बोल रहे हो वही अंडरलाइन करो। मुझे पता है लिखना तुझे बिल्कुल पसंद है, खाली एग्जाम में तू लिखती है, बाकी कोई जगह लिखना तुझे पसंद है। उसके बाद पोलर सॉल्वेंट, उसके बाद वाला लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बाद मैंने क्या लिखाया? अल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर में। हाँ, अब एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, सर इसके सॉल्वेंट्स के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ सॉल्युबल्स होते हैं? तो लाइक सॉल्वेंट्स लाइक अल्केन्स में डिसॉल्व, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड पोलर कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। इस चीज को भी लिख लीजिए, जो पोलैरिटी के बाद लिखिए, नॉन पोलर compounds are dissolved in non-polar solvents and polar compounds are dissolved in polar solvents. And non-polar compounds are dissolved in, मतलब इतना याद रखना है, like solvents and unlike solvents. लाइक एंड अनलाइक को याद रखना है। लाइक पोलर सॉल्वेंट्स डिसॉल्व इन, पोलर वाला पोलर में होगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में होगा। समझ में आया आप लोगों को? और फिजिकल स्टेट्स में आप लोग वो कल जो हम लोगों ने लिखा था उस चीज को जरूर लिख लीजिएगा। C1 से C4 फिजिकल स्टेट गैसियस, C5 से C17 फिजिकल स्टेट्स लिक्विड एंड C18 ऑनवर्ड्स सॉलिड। तुम लोग यहाँ पे पूछ सकते हो सर C12 तो सॉलिड है, फिर आप कह रहे हो C5 से लेके C17 तक लिक्विड। एक्सेप्शंस, हाइड्रोकार्बन जनरली कहाँ पाए जाते हैं, कोई बता सकता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। ये सारे इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, जनरली 4 या 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एक आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को जरूर दर्शा देना, दूसरा सॉल्युबिलिटी के बारे में, तीसरा पोलैरिटी के बारे में, चौथा कलर के बारे में, स्मेल के बारे में, टेस्ट के बारे में, और पांचवा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपने लिखा, क्या लिखा लास्ट पॉइंट? फिजिकल स्टेट्स। यस, टेल व्हाट वाज इट? पेट्रोल इज यूज्ड इन क्लीनिंग द क्लोथ्स, मतलब हाँ देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है, अभी एनसीईआरटी से पढ़ा है इसने, और इसने पूछा कभी तुम लोगों के कपड़े पे कोई ऐसा दाग पड़ा है जो दाग नहीं छूटता?
हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स याद आ रहा है 10th स्टैंडर्ड कुछ? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, कुछ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में कुछ याद आ रहा है? समथिंग वो जो था वो रिएक्शन में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हाइड्रोफोबिक एंड होगा या हाइड्रोफिलिक एंड? यही आपका मेन क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिक एंड किसको कहते हैं वो आपको पता करना है, राइट? देखिए, जब भी कोई डस्ट या स्क्रब या दाग या धब्बा हमारे कपड़े पे लग जाते हैं, याद रखना, एकदम घटिया से घटिया दाग अगर कोई भी सर्फ या साबुन से ना छूटे, पेट्रोल थोड़ा 5 ml पेट्रोल उस कपड़े पे डाल दे, तुम्हारा घटिया से घटिया दाग छूट जाए। ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री सिर्फ साबुन और सर्फ तक नहीं रहता है, केमिस्ट्री तुमको स्ट्रेन को रिमूव करने में एरियल जैसा कंपाउंड नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। क्यों? हाइड्रोफोबिक एंड है इस कारण से। हाइड्रोफोबिक एंड क्या करता है पता है तुमको? कैटायन और एनायन जो स्ट्रांगली अटैच रहता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा असरदार है, जिस कारण से जो बहुत ही घटिया स्ट्रेन है, स्क्रब है, वो नहीं निकलना चाहता है क्योंकि वो क्लोथ्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो हार्ड होता है दैट इज पेट्रोल इन कंपैरिजन टू डीजल एंड केरोसिन, सबसे ज्यादा हार्ड पेट्रोल होता है, महंगा भी समझ लें, सबसे ज्यादा महंगा भी। तो वो पेट्रोल का 5 ml देखना, आज एक काम करना, जो ग्रीस या ऑयल जो होता है ना किसी व्हाइट कपड़े में लगाते, खराब वाला व्हाइट कपड़ा जैसे कोई रुमाल हो उसमें लगाना और पेट्रोल लेकर के उसको रब करना, फिर पानी में डालना और निकालना, जैसे एरियल का एडवर्टाइजमेंट दिखाता है ना वैसे एडवर्टाइजमेंट में तुम्हारा कपड़ा साफ। बेटा यही तो रीजन है, उसको डिसोशिएट कर देता है। डिसोशिएट का मतलब होता है उसको तोड़ देना, बॉन्ड को ब्रेक करना। बॉन्ड ब्रेक हो गया, तुम्हारा स्क्रब साफ, तुम्हारा जो दाग था वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण अटैच था, जो पानी से दूर कर दिया तुम्हारे उस बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर कर दिया, तुम्हारा दाग छूट गया। पेट्रोलियम, ऑलिफियम, these are the products which can remove these strings. कैसे रिमूव होता है एक बार प्रैक्टिकल करके देखोगी तो पता चलेगा कौन सा कैटायन होता है कौन सा एनायन। जैसे सोडियम इथानोएट में तुमने क्या देखा? सोडियम प्लस इथानोएट माइनस। इथानोएट में तुमने क्या देखा? एसीटेट आयन को अभी जस्ट तुमने देखा, अल्केन्स बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, हाइड्रोजन बाहर, देखा रिएक्शन? सेम होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लिक्विड Fe17, C18, मतलब ये लिक्विड स्टेट जो मैंने फिजिकल स्टेट्स लिखवाया है, C1 से C4 तक गैसियस, C5 से C17 तक लिक्विड, C18 ऑनवर्ड सॉलिड। तो ये जो तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में जो रेसिड्यू है उस सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में ले जाता है और लिक्विड फॉर्म से तुम्हारे उस स्ट्रेन को रिमूव कर दिया। हाँ जी, न्यूट्रल स्टेट, ऑल द कंपाउंड्स आर इन न्यूट्रल स्टेट ओनली बेटा, देन ओनली द कंपाउंड इज एग्जिस्टिंग। लेकिन न्यूट्रल कंपाउंड को भी, ये तुमको क्या लग रहा है सोडियम इथानोएट न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है? कोई भी कंपाउंड है न्यूट्रल है तो ही एग्जिस्ट करता है। मैंने सिखाया था रिडॉक्स रिएक्शन में कैलकुलेशन 0 के बराबर में होना चाहिए, याद आया कि नहीं आया? तो दिस वाज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा थोड़ा लंबा है, उसको हम लोग कल भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जहां तक हो सकता है आज 4-5 केमिकल रिएक्शंस में मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। सबसे पहले मुझे एक चीज आप लोग बता दीजिए, हैलोजिनेशन किसको कहते हैं? हैलोजेंस के जो अटैचमेंट्स होते हैं, हैलोजेंस जो होते हैं उसको हैलोजिनेशन कहते हैं। हैलोजिनेशन को ब्रेक करने के लिए कौन से रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स बनते हैं? याद कीजिए, कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई कंपाउंड है, इसको आप कैसे ब्रेक करें? आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफर करता है? बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, एंड सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड द शॉर्ट। आइसोमर्स जैसे होगा चेन क्या होगा? छोटा होते जाएगा। जैसे नियोपेंटेन 3 कार्बन वाला हो गया, पेंटेन नॉर्मल 5 कार्बन वाला हो गया, आइसोपेंटेन 4 कार्बन वाला हो गया। तो जैसे जैसे आपका डिक्रीज होते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज।
आइसोमर्स में क्या हो गया, आपने चेन कर दिया, लंबा जो था तो हर एक बॉन्ड को तोड़ने में समय लगता, यहाँ पे ब्रांच वाला चेन के साथ अटैच हो, कार्बन का छोटा बॉन्ड छोटा, कार्बन बड़ा। और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा लगेगा, सिंगल हो, हाँ। समझ में आ गया? बताया था मैंने सभी चैप्टर में पढ़ा। आ जाइए यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में पहला स्टेप डालिए हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी हैलोजेंस जनरली H2 फॉर्म में होता है, चाहे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, निकोन, F2Cl2 Br2 I2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2 क्यों होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन F2 के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अभी जस्ट हमें यार पूछा था। HF हाइड्रोफ्लोरीन जो होता है, क्या कहते हैं पता है तुम लोगों को, फ्लोरीन का एक तो साइज बहुत ही छोटा है, सेकेंड ऑर्बिट का एलिमेंट है, सेकेंड ऑर्बिट में भी इसके पास 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, ये खुद के लोन पेयर से रिएक्शन कर लेता है। इतना साइज छोटा होने के कारण ये बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स करके F2 का फॉर्मेशन। जनरली पूछोगे कि सर HF विल बी मोर स्टेबल और FF विल बी मोर स्टेबल, कौन सा होगा, FF, HF नहीं। क्यों, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, खुद के बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स करके F2 का फॉर्मेशन। यहाँ पे तो चलो एक शेयर्ड पेयर था इसका, फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों शेयर्ड पेयर करके अपना कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिए। लेकिन ये इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि खुद के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ भी मतलब उसको बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा है। तो इसीलिए जल्दी आप लोगों को जो हैलोजिनेशन जो ब्रेक करोगे, तो हैलोजिनेशन में एटलीस्ट Cl2 से स्टार्ट करना, F2 से स्टार्ट मत करना। कोई भी हैलोजन कंपाउंड जो H2 फॉर्म में रहेगा, उसको ब्रेक करने के लिए हमारे सबसे प्रमुख रिसोर्स कौन से हैं, सनलाइट साहब है ना। याद करो प्लांक्स कांस्टेंट, याद आ रहा है क्या होता था प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू, 6.634 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद आ रहा है कुछ, वही h न्यू यहाँ पर डाल रहे हैं। ये h न्यू क्या है, इसीलिए मैंने प्लांक्स कांस्टेंट का थोड़ा चर्चा किया है। अल्ट्रावायलेट रेज जानते हो, याद करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने एक रिएक्शन बताया था कि लाइट इज अ पार्टिकल एंड लाइट इज अ वेव बोथ, ड्यूअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। याद आया कुछ, नहीं भी याद आया तो नो प्रॉब्लम। कोई भी हैलोजेंस को ब्रेक करने के लिए जैसे आप ये ब्रेक करोगे तो Cl और Cl जब ब्रेक करेगा तो कौन से एनायंस के रूप में टूटेंगे, क्या Cl माइनस के रूप में टूटेगा या नहीं टूटेगा। रिया चैप्टर नंबर 12 फ्री रेडिकल्स के बारे में सुना है तुमने, पोलर कंपाउंड्स है, याद आ रहा है कुछ, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हैव यू हर्ड इट। तो ये क्या होगा, कैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा, फ्री रेडिकल्स होंगे, Cl का ये हाफ इलेक्ट्रॉन इधर, ये हाफ इलेक्ट्रॉन इधर, Cl माइनस, ये जो आप देख रहे हो दोनों के पास एक एक हाफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये देख लीजिए Cl जो आप देख रहे हो, तो क्लोरीन का जो 7वां इलेक्ट्रॉन है, 3 तो लोन पेयर है, 2 2 4 2 6 और ये एक 7, इधर भी 2 2 4 2 6 और ये एक 7। ये 7वां इलेक्ट्रॉन जो है इनका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों बॉन्ड पेयर बना करके Cl2 बॉन्ड बना था। अब ये जो बॉन्ड डिसोशिएट होगा, ये जो बॉन्ड टूटेगा, तो टूटते समय ये डिपेंड करता है, अगर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो उस दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने ऊपर में निगेटिव चार्ज कर देता है, और जिसके इलेक्ट्रॉन लेके गया उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। याद कीजिए मिथाइल क्लोराइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये देख लीजिए हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स टुवर्ड्स क्लोरीन है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन ले लेता है, यहाँ पर आपका CH3+ बन जाता है और यहाँ पर Cl- बन जाता है।
ये माइनस जो है ये क्लोरीन का एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन, होमोलाइटिक इलेक्ट्रिक फ्यूजन। याद आया कुछ? कोवेलेंट चैप्टर नंबर 12, homolytic electric fusion and heterolytic electric fusion. Here it is a homolytic electric fusion. It will breaks down into the free radicals. Have you heard? अब कोई पूछेगा सर यहाँ पे तो दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों एक जैसा कंपाउंड है, दोनों के पास 3-3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से बाजू जाएगा? दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना? तो नहीं, अपना अपना, तू तेरा इलेक्ट्रॉन ले, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, हम दोनों एक्टिव ग्रुप फ्री रेडिकल्स हैं। समझ में आया या नहीं आया तुम लोगों को? यस और नो? तो सबसे पहला स्टेप जो है आप लोग हैलोजिनेशन डालिए। हैलोजिनेशंस को ब्रेक करने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? अल्ट्रावायलेट रेज। नाम सुने? हाँ यार, लाइट भी बोल तो चलेगा बेटा, लाइट से ही रे निकलता है ना। हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं ना? अंडर रेज होगा तो हाई टेम्परेचर। घर से बाहर निकल के देखो टेम्परेचर है या नहीं है। सनलाइट जब भी पड़ेगा तो टेम्परेचर तो होगा ही। अंदर हाई टेम्परेचर जब भी जाएगा तो कैसे ब्रेक होगा? बताइए रिया जी, किस तरह से ब्रेक होगा? हेलोजेंस को अगर हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज में अंदर हाई टेम्परेचर डालेंगे तो कैसे ब्रेक? अभी तो मैंने आपको यहाँ पर फ्री रेडिकल्स दिया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपको कि कैसे ब्रेक होगा, बताइए। नहीं, ये जो Cl2 है, Cl2 को अगर ब्रेक करोगे, Cl2 ओनली Cl2 के बारे में तो कैसे ब्रेक जी? बताइए किस तरह से? एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, वो हाफ बॉन्ड, क्या वो हाफ एरो होता है ना, वो फ्री रेडिकल, हाँ, फ्री रेडिकल्स के रूप में एग्जिस्ट। अब अगर इसको आप अल्केन्स के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? बताइए। अगर इसको हम अल्केन्स के साथ फ्री रेडिकल्स को रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड्स बनेगा या नहीं बनेगा? कोई भी एक्टिव ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप को अगर आप अल्केन्स के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? जो भी कंपाउंड है उसको आप किसी चीज से रिएक्शन कर रहे हैं, ये होता है ना केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा था हैलोजिनेशन मेथड। हैलोजिनेशन मेथड में मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर तुम लोग कोई भी हैलोजेंस को अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में रखोगे अंडर हाई टेम्परेचर, तो सबसे पहले वो फ्री रेडिकल्स के रूप में टूटेगा और वापस यहाँ पर जो तुम मिथेन है, जो तुम्हारा अल्केन्स है, जब अल्केन्स को तुम इस फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? मिथाइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड। तुमने प्रिपरेशन मेथड में अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाया था, याद करो, बनाया था अल्काइल हैलाइड से अल्केन। यहाँ पर अल्केन से क्या बनाना है? अल्काइल हैलाइड्स बनाना है। तो जब भी तुमको कोई भी अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना हो तो सीधा सीधी UV ऊपर में लिख देना प्लस X2 लिख देना, मिथाइल हैलाइड या कोई भी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन। अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए आपको X2 के साथ, X2 का मतलब हो गया हैलोजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ UV अंडर हाई टेम्परेचर, तो आपका मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड से मीथेन बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के लिए स्मृति ने कहा था कुछ। यस स्मृति, हैव यू रिमेंबर्ड? भूल गया, अभी जस्ट बताया था ना। सेकेंड वाला अल्काइल हैलाइड से ऊर्ज रिएक्शन से ऊपर वाला Zn और H प्लस X2 के साथ रिएक्शन करेंगे, HCl बाहर हो जाएगा और अल्केन बन जाएगा। याद आया? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अल्काइल हैलाइड से अल्केन और अल्केन से अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? हार्दिक क्या है? तुमको बेटा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, एक बार पहले थोड़ा आगे बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है? हैलोजिनेशन मेथड्स के बाद सेकेंड मेथड कौन सा है? बताइए निखिल जी। हाँ,
न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस, तो वो सब आइसोमर्स में जाएगा। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के बारे में बेटा कहाँ टूट जाती है नाना को तुरंत पता नहीं चलती है। मेरिडियन से तुरंत भूतरी वाले ब्रांच पे चली जाती है और भूतरी वाले ब्रांच से तुरंत मेरिडियन। यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये आपने सबसे पहले क्या किया, हैलोजिनेशन से फ्री रेडिकल्स बनाए। फ्री रेडिकल्स को आपने अल्केन्स के साथ रिएक्शन किया, क्या बना आपका, अल्काइल हैलाइड्स बना। यहाँ पर आपने पहला स्टेप खाली इतना सीखा कि अगर हम किसी भी अल्केन्स को हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी अंडर हाई टेम्परेचर, तो हमारा अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन, ये पहला स्टेप है। अभी आप लोगों को फर्स्ट स्टेप में बहुत सारे रिएक्शंस को रिमेंबर करना है, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, बॉन्ड क्लीवेज, इलेक्ट्रॉन फ्यूजन, इलेक्ट्रॉन फिजन, ये सारे। इसीलिए केमिस्ट्री जब होता है तो इंटायर केमिस्ट्री होता है। चैप्टर नंबर, कौन से चैप्टर का टेस्ट है कल, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़ा आगे मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है वो कल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा पी ब्लॉक का रिवीजन, राइट। यस बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। पी ब्लॉक में जो डाउट्स है, जैसे हमें का 2 डाउट्स था, हमें का एक डाउट था कि सिलिकॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है तो कार्बन का कम होता है, क्यों? क्या कोई बता सकता है एनीवन? नादा का फुल प्रिपेयर होगा। Why silicon ionization enthalpy is less than carbon? Question number 18, 23 देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, यह होगा एक्सरसाइज में। सब लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज